Yes, students, our today's topic is chapter from geography, our changing earth. Now, this chapter starts with lithospheric plates. Lithosphere, as you have read about in previous chapter in detail about lithosphere, land part. Pata hai na? Lithosphere means land part. And lithosphere is broken into number of plates. Lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates. So meaning of lithospheric, क्या होते हैं lithospheric plates? When lithosphere is broken into number of plates, that is known as lithospheric plates. And these plates move very slowly inside the earth. These plates move very slowly inside the earth, and only few millimeters every year. Only few millimeters मैंने बोला है. These plates move very slowly. तभी हमें फील नहीं होता ना कि अंदर से कुछ मूव भी हो रहा है. No, हमें नहीं पता चलता. These plates move हमें तब पता चलता है जब उनको गुस्सा आता है. फॉर एग्जाम्पल जब अर्थक्वेक आता है, जब वो फास्ट मूवमेंट हो जाती है, तो दीज प्लेट्स मूव वेरी स्लोली एंड ओनली फ्यू मिलीमीटर्स इन अ ईयर. Every year only few millimeters these lithospheric plates move up. Movement of the plates cause changes on the earth's surface. The movements of these plates cause changes on the earth's surface, and the earth movements are divided on the basis of forces. Now, which are the forces? Endogenic forces, exogenic forces. Endogenic and exogenic forces. Endogenic and exogenic. Endo means, the word endo means inside. Exo means outside. Firstly, learn this. Endo means inside. Exo means outside. And genic means origin. So endogenic या फिर exogenic. So I have told you movement of the plates cause changes on the earth's surface. And these movements are divided on the basis of forces. Now, which are the forces? Endogenic forces and exogenic forces. Endogenic forces होती हैं that works on the surface of the earth. Endogenic forces that work on that endogenic acts inside the interior of the earth. The forces that act inside the earth. Forces that act inside the earth, in the interior of the earth, they are called endogenic. Inside the earth. And forces that work on the surface of the earth, they are called exogenic. Forces that work inside the earth, they are called endogenic. Forces that work outside the earth are called exogenic. Listen again. Lithosphere is broken into number of plates. These plates move very slowly, few millimeters every year. And the movement of the earth, the movement of these plates cause changes on the earth's surface. And earth's movements are divided on the basis of forces. Now, which are the forces? Endogenic and exogenic. Endogenic and exogenic. Forces that work inside the earth are called endogenic. Forces that work outside the earth are called exogenic forces. Now, endogenic forces sometimes produce sudden movement, and that sudden movement is known as earthquake, volcanoes,
ये सब डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं, कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोजेनिक फोर्सेस, दे एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं, दे प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, दे प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। और वो सडन मूवमेंट में मैं किसको बोल रही हूँ, लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। एंडोजेनिक फोर्सेस कॉज सडन मूवमेंट दैट इज नोन एज earthquake and volcano, which cause great destruction on the earth. I've told you two forces, endogenic and exogenic. Work endogenic forces inside the earth, exogenic forces outside the earth. अब मैंने बोला एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में मैंने बताया। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं, दे प्रोड्यूस सडन मूवमेंट सच एज earthquake and volcanoes, which cause great destruction on the earth. Now here you can see volcano, diagram of volcano. Now what's volcano? Volcano is a vent in the earth's crust through which molten material such as lava comes out. It is a vent. Volcano, vent means opening. Volcano is a vent in the earth's crust. Volcano is a vent in the earth's crust through which lava, molten material comes out. Now what's vent? Vent. Volcano, ये देखो, ये volcano का diagram है. It is a vent through which molten material such as lava comes out. So what is volcano? It is a vent. Vent means opening through which molten material such as lava comes out, through which lava erupts, through which molten material such as lava comes out. And when lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. When these plates move, as I have told you, lithosphere is broken into a number of plates. When these plates move, the surface of the earth vibrates. Vibration can travel all around the earth, and these vibrations are called earthquake. Lithospheric plates होती है ना, वो move करती हैं, and lithospheric plates move. And due to this, surface of the earth vibrates. Lithospheric plates move. And due to this movement, surface of the earth vibrates. Vibrate होता है, and these vibrations are called, क्या कहते हैं इस vibration को? Earthquake. And earthquake, ये I have drawn here one diagram. Focus and epicenter. Focus, earthquake. अब the place in the crust where movement starts, जहां से earthquake की movement start होती है, that is called focus. And the place on the surface above the focus is called epicenter. जहां पे ये movement start होती है, that is called focus. And above the focus is epicenter. क्या आ जाता है? Above the focus is a point that is called epicenter. Lithospheric plates move, and this cause vibration on the earth's surface, and these vibrations are called earthquake. And the place in the crust where movement start, जहां पे ये movement start होती है, that is called focus. Above the focus is the point that is epicenter. Vibrations जो होती है ना, that travel outwards from the epicenter as waves. Great damage is caused near the epicenter, and whereas it decreases away from the epicenter. Movement कहाँ पे start होती है? Focus. Above the focus is epicenter. Great destruction is caused at epicenter and it decreases away from the epicenter. For example, मैं आपको बताती हूँ, एक स्टोन ना, आपके घर के पास अगर कोई
कुछ भी है, पानी का एक बड़ा टब भी है, आप उसमें कुछ भी फेंको, छोटा सा एक पत्थर फेंको, बीच में आप देखना कैसे, जहां पे आपका वो पत्थर गिरेगा ना, मीन्स वो आपका बन गया फोकस, जहां पे वो गिरा, ऊपर देखना पानी की लहरें बनेगी उसके ऊपर, वो मीन्स एपिसेंटर। जितना वो दूर, जहां पे वो आपने सेंटर में फेंका, वहां पे वो बना फोकस, जहां पे आपका वो स्टोन गिरा, ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर लहरें बनी उतने हिस्से में, वो हो गया एपिसेंटर। अब उसके दूर अगर हम थोड़ा देखेंगे तो नहीं, वो पानी का जो कहेंगे ना कि वो स्पीड जो है वो वहां पे बहुत कम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे वो आपको गोल गोल दिखेगा कि कुछ बन रहा है, पानी की लहरें बन रही हैं, बट इधर नहीं। मीन्स डिस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो सिर्फ इन्हीं एरियाज में होती है जब अर्थक्वेक आता है। फोकस के अबव जो सेंटर है ना, दैट इज एपिसेंटर, वहां पे डिस्ट्रक्शन होती है। जितना एरिया, अगर 1 मिनट हो सकता है अर्थक्वेक आया, ये है अफगानिस्तान, एपिसेंटर अफगानिस्तान बना, इंडिया पीछे है, ठीक है, इंडिया समझ लो यहाँ पे है, ये अफगानिस्तान है, ये इंडिया है। अब इंडिया तो चला गया दूर, तो इंडिया में डिस्ट्रक्शन, एपिसेंटर कौन सा एरिया बना, अफगानिस्तान, कहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, अफगानिस्तान। जब गुजरात में भी हुआ तो मींस गुजरात बना एपिसेंटर, पंजाब दूर आ गया, तो पंजाब में डिस्ट्रक्शन इतनी नहीं हुई थी। तो ये जो एरिया एपिसेंटर होता है ना, अबव द फोकस जो एरिया होता है, जहाँ पे वाइब्रेशन होती है अंडर द अर्थ क्रस्ट, वो जहाँ पे वो वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। फोकस के अबव है एपिसेंटर, एपिसेंटर में डिस्ट्रक्शन होगी, एरियाज विच आर अवे, वहां डिस्ट्रक्शन वहां पे भी होगी। हमें कई बार ऐसे नहीं फील होता कि आज हमें ऐसे लगा जैसे अर्थक्वेक आया, तब हम एपिसेंटर से बहुत दूर होते हैं, हमें भी फील होता है, वाइब्रेशन हमें फील होती है थोड़ी सी, बट हम एपिसेंटर वाले एरिया, अगर एपिसेंटर में होते तो बहुत डिस्ट्रक्शन होती, मीन्स हम दूर थे, हम उस एरिया में नहीं थे। फिर बाद में न्यूज में पता चलता है, अब न्यूज सुना करो ना, फिर बताते हैं वो कि कौन सा एरिया एपिसेंटर था, कहाँ पे डिस्ट्रक्शन, कहाँ पे डैमेज ज्यादा हुआ है, जो एरिया एपिसेंटर होता है वहां पे डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, एक्सोजन, बताओ ये दोनों क्या है, एंडोजेनिक, बोथ आर एंडोजेनिक, क्योंकि अर्थ के अंदर से हुआ सब कुछ। एंडोजेनिक है क्या एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक होएगा, वेदरिंग हो गई, जैसे सॉइल इरोजन हो गया, वो एक्सोजेनिक होएगा क्योंकि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है। एक्सोजेनिक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर एज एंडोजेनिक इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये इनसाइड है दोनों, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। अब मैं आपसे पूछूं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। वॉल्केनो क्या होता है, इट्स अ वेंट थ्रू विच lava erupts, molten magma such as lava erupts, is it clear, molten magma such as lava erupts। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लेट्स मूव करती हैं, वाइब्रेशन होती है, जिस एरिया में वाइब्रेशन ज्यादा हो, ठीक है, अंडर द अर्थ क्रस्ट, दैट बिकम्स फोकस, above the focus is epicenter, destruction caused more near epicenter, whereas it decreases away from the epicenter। epicenter से हम दूर जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगी। आप घर में वो जो मैंने बोला ना टब वाला, उसको करके देखना, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें एक पत्थर फेंकना, पत्थर नहीं है तो कुछ भी उसमें फेंक के देखना, आपको प्रॉपर फील होएगा कि ये एपिसेंटर, आपको एपिसेंटर पता चल जाएगा, फोकस एंड एपिसेंटर। दूर से आपको पानी की लहरें कम दिखेंगी तो आपको पता चलेगा दीज आर द अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, तो यहाँ पे इतना पानी का वो नहीं बन रहा प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट, हमने अभी किया एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक। अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है ना, अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ, व्हाट आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल irregularly shaped plates, these are called lithospheric plates। what are lithospheric plates, earth's crust consists of several large and small irregularly shaped plates that are called lithospheric plates। क्या कहते हैं उन्हें, लिथोस्फेरिक प्लेट्स।
earthquake is measured with the machine called seismograph. अब earthquake को अगर हमने measure करना है तो name the machine used to measure earthquake. Seismograph. Seismograph is used to measure earthquake. कौन सी मशीन को यूज किया जाता है to measure earthquake? Seismograph is used to measure earthquake. And the magnitude of the earthquake is measured on Richter scale. Which scale is used to measure the magnitude of the earthquake? Richter scale. So learn both for 1 mark or MCQ. Earthquake is measured with machine called seismograph, and the magnitude of the earthquake is measured with Richter scale. Learn both. Okay, magnitude of the earthquake is measured with Richter scale. Learn these both. तो earthquake जो है, is it, क्या ये हमें पहले से पता चल जाता है? प्रेडिक्ट हो सकता है पहले से? अभी हम यहाँ बैठे हैं तो अभी earthquake आ जाए, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं earthquake आना है? ये प्रेडिक्टेबल नहीं है ना, हमें पता चल सकता है पहले से ही? बिल्कुल नहीं पता चल सकता, क्योंकि बच्चे इनसाइड द अर्थ है ना सारी मूवमेंट्स, तो दैट्स व्हाई ये प्रेडिक्ट नहीं होता. ठीक है, फिर भी तो डिस्ट्रक्शन तो होती है जब भी आता है, बट अगर इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं, जैसे आप बच्चे हो, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी हो कि अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना है, तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो. ठीक है ना. जैसे एक बार कहाँ पे साउथ इंडिया के एक स्कूल में आग लग गई थी, तो बच्चों को पता ही नहीं था कि कैसे बाहर निकलना है. उनको पता ही नहीं था. जब बॉम्बे के होटल्स में आग लगी थी तो लोगों को पता ही नहीं था. जो फॉरेन कंट्रीज के लोग थे वो बच गए, इंडियंस मारे गए. व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि इंडियंस को पता ही नहीं था. उन्होंने क्या किया, अपने दरवाजे सब कुछ बंद कर लिए और उसी में उनकी सफोकेशन से डेथ हो गई. जबकि जो बाहर के लोग, जिनने नॉलेज थी, उस होटल में बाहर के भी लोग आए हुए थे दूसरी कंट्रीज के, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे उनके पहले बिगनिंग में उनके स्कूल्स वगैरह में उन्होंने क्या किया, वो फर्श पे अपने मुंह पे उन्होंने टॉवल गिले किए और अपने मुंह पे अच्छी तरह से उन्होंने अपने सिर मुंह पे लपेट लिए और वो फर्श पे लेट गए. टॉवल गिले किए और फर्श पे लेट गए. उनको कुछ नहीं हुआ, वो बच गए. जो लोग हमारे पैनिक हुए उस आग में, अपने रूम्स बंद कर लिए, वो अंदर ही सफोकेशन से मर गए. पर जो लोग, उन्होंने साहस से काम लिया, जो फॉरेनर्स वहां पे होटल में ठहरे हुए थे, जिनको पता था कि इससे कैसे बचना है, उन्होंने अपने टॉवल्स गिले किए, अपने मुंह से उसमें लपेट के वो नीचे लेट गए फर्श पे. तो जब वो सारा उन्होंने फायर ब्रिगेड वाले आए, सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल हो गया, तो वो लोग बिल्कुल सेफ बाहर निकले. और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे किया कि उन्हें पता था कि कैसे ऐसी कंडीशन में से कैसे निकलना है. मीन्स पहले से ही कुछ ऐसी नॉलेज दी जानी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाए. एक बार हमें क्या पता कहाँ बैठे कब अर्थक्वेक आ जाए. घर में आप बैठे हो, आपके घर में कोई बड़ा ही नहीं है, अर्थक्वेक आ जाए, मम्मा पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, अर्थक्वेक आ जाए, फिर तो ऐसे कुछ होनी चाहिए सेफ्टी मेजर्स. बच्चों को सबको पता होनी चाहिए कि व्हाट शुड वी डू अगर ऐसा हो जाए. तो उसके लिए मैं बोलती हूँ, लिसन केयरफुली. अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि इनसाइड मूवमेंट है ना, ये इनसाइड अर्थ के, है ना. बट डिस्ट्रक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड. जो भी है उसकी डिस्ट्रक्शन को हम कम तो कर सकते हैं ना, बाय टेकिंग वेरियस स्टेप्स, बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स. पहले क्या करते होते थे लोग, क्या करते थे लोग, कहते थे कि ना, जैसे लोग ऐसे ही अपने तुक्के लगाते थे. कैसे कि फिश इन पोन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस, जैसे उनको लगता था. एंड एनिमल की बिहेवियर से ना गेस लगाते थे कि अब ना ये ऐसे हो रहा है तो अर्थक्वेक आएगा. स्काई में ईगल हो गई है, अर्थक्वेक आने वाला. पहले के लोग ऐसे प्रेडिक्ट करते थे, मतलब एनिमल्स के बिहेवियर से पता करते थे कि स्नेक्स ऑन द सरफेस आ चुके हैं अर्थ के, मींस अर्थक्वेक आने वाला है. तो पहले के लोग ऐसे गेस करते थे. ठीक है, तो वो इतना हम कह नहीं सकते कि वो ट्रू होएगा कि नहीं. अब व्हाट शुड वी डू व्हेन अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक अगर हो तो क्या करना चाहिए. सबसे पहले तो सेफ स्पॉट. हम एक सेफ जगह, बाई चांस यहीं पे आ गया, आपके लिए सेफ जगह कौन सी होगी, मुझे 1 मिनट में बताओ.
बेंच के नीचे, वेरी गुड, इस बेंच के ही नीचे, ये सबसे सेफ स्पॉट है। ये नहीं है कि इस रूम, इस यहाँ पे खड़े हो जाओ, सबसे बेस्ट है बेंच के नीचे, डाइस के अंदर, बेंच के, घर के डाइनिंग टेबल के अंदर, वो शीशे का ना हो डाइनिंग टेबल, वुडन हो, मतलब ऐसी चीजें, किचन की शेल्फ के नीचे, ठीक है ना, ऐसी वाली चीजें, सेफ स्पॉट, अंडर किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, इनसाइड कॉर्नर और वॉल, ठीक है, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। इज इट क्लियर? हमें सबसे पहले तो सेफ स्पॉट ढूंढना है, विच इज द सेफ स्पॉट। हमें टेबल के अंडर, ये जो डाइस पड़ा है इसके अंडर, है ना, किचन काउंटर के अंडर, तो आप अगर घर में अकेले हो तो ऐसा हो जाए तो डाइनिंग टेबल है उसके अंडर, है ना। ओके गुड। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम, अब किस किस से दूर रहना है? सबसे पहले अपने